ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉਡਾਨ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲਿਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ A ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 1 2 ਤੇ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਸੈੱਟ B, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 5 6 9 ਸਮਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 1 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 1 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ 9 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ 9 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਮ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ 6 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ 9 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੈੱਟ A ਤੇ ਸੈੱਟ B ਦੀ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਜੋ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ R ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਫॉर all elements of x and y such that। ਹੁਣ x and y ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਅਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ x ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ y ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਅਰਸ ਨੇ x and y। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ y equals to 3x। y ਕੀ ਹੈ, x ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ x ਹੈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ A ਨੂੰ ਤੇ y ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ B ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ y ਹੈ ਉਹ x ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਬਸੈਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ? ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ A ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 1 2 ਤੇ 3। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ B ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 5 6 ਤੇ 9। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, y equals to 3x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਕੀ ਹੈ, A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, y ਕੀ ਹੈ, B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। y equals to 3, ਜੋ x ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 1, 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 3। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, 3 ਆ ਗਈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਜੋ y ਆ ਉਹ B ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਬਟ y ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੈ 6 ਹੈ 9 ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y equals to 3, ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 2। 3 into 2 ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 6। 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, 6 B ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਅੱਗੇ।
y इक्वल्स टू 3। हुण x की वैल्यू आपां लवांगे 3। 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 9। 3 का जो रिश्ता है वो 9 के नाल बन रहा है कि अपने को हैगा। हाँ जी, 3 का पेयर जो है अपना 9 के नाल बन रहा है। 9 भी अपना बी सैट विच हैगा, यानी कि ये दोनों रिश्ते ने जिहड़े इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इत्थे बन रहे हैं। ठीक है जी, किहड़े किहड़े रिलेशन बन रहे हैं आपां एक बार रोस्टर फॉर्म दे विच भी लिख लैंदे आ। 2 का रिश्ता बन रहा है 6 के नाल ते 3 का रिश्ता बन रहा है 9 के नाल। ये दो रिलेशंस ने जिहड़े अपने बन रहे ने, तुसीं देख सकते हो ये जो अपने पेयर्स आए सीगे कार्टेशियन प्रोडक्ट दे, इन्हां दे ही सबसेट ने। सबसेट की हुंदा है? पूरे जो यूनिवर्सल सैट है उसका कुछ पार्ट हुंदा है। हुण 2 ते 6 का पेयर अपने कोले हैगा जी, 3 ते 9 का पेयर भी अपने कोले की हैगा, यानी कि इन्हां दे विचों ही जो रिलेशंस ने वो निकलदे ने। इन्हां विचों तो छोटी जी चीज होर है जो अपनी ध्यान रखने वाली है, एक होंदी है अपनी डोमेन ते एक होंदी है अपनी रेंज ते लास्ट होंदी है अपनी कोडोमेन। ठीक है जी, एक छोटे ਜਿਹੇ पॉइंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਡੋਮੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी कि जिथों रिश्तों की स्टार्टिंग होंदी है वो अपनी की है डोमेन, एक 2 ते इस दी 3। क्लियर है जी। रेंज की होंदी है जिथों तक अपना रिश्ता गया हैगा। रिश्ता कित्थे तक गया हैगा? ये वाला 6 तक गया है, ये वाला 9 तक गया है, यानी कि ये अपनी की होगी रेंज होगी। ये अपनी 6 ते 9 की अपनी रेंज है जिथों तक अपना जो रिश्ता है वो गया हैगा। लास्ट है कोडोमेन। कोडोमेन भी होंदी है जिथों तक अपना रिश्ता गया है, यानी कि जो अपना सैट बी है वो सैट के सारे एलीमेंट्स जिहड़े हुंदे ने वो अपने कोडोमेन दे विच आ जांदे ने। 5 है, 6 है ते 9 है। ठीक है जी। कोडोमेन की होंदी है जो अपने सैट बी दे सारे एलीमेंट्स जो हुंदे ने वो अपने कोडोमेन हुंदे ने। सो इहदे विच तीन गल्लां मेन याद रखने वालियां ने। डोमेन की होंदी है जिथों रिश्ता शुरू होंदा है, रेंज की होंदी है जिथे तक अपना रिश्ता गया है, कोडोमेन की होंदी है अपने सैट बी दे सारे एलीमेंट्स। क्लियर। सो ये अपना छोटा जिहा कॉन्सैप्ट सीगा एक रिलेशन किदां बनाया जाता है मैथ्स दे विच। आई होप तुहानूं वधिया लगा होएगा ते समझ भी आया होएगा। चलिए इसे कॉन्सैप्ट नूं लैके आपां शुरू करते हैं अपनी अज दी एक्सरसाइज 2.2। तो जो अपना इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह है। अपने को एक सैट दे रखा है सैट ए, जिस दे विच अपने को 1 तो लैके 14 तक कुछ नंबर्स ने, तो एक रिलेशन दे रखा है जो रिलेशन डिफाइन करता है ए टू ए, यानी कि ए तो लैके आप ए तक ही जाना है। ठीक है जी, यानी कि दोनों सैट की ने सेम ने। सैट ए भी अपना ए ही है, सैट जो बी हुंदा अपना वो भी अपना की है ए ही है। एक कंडीशन दे रखी है, रिलेशन की है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ते x ते y की ने जी बिलोंग करते हैं दोनों a नु। ठीक है जी। सो इस कंडीशन नु लेके आपां की करांगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करांगे। सो कंडीशन की अपनी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। सो पहले आपां थोड़े इसनु सॉल्व कर लेने आ। ये y माइनस दा इस साइड आके प्लस दा हो जाएगा। सो 3x इक्वल्स टू y। ठीक है जी। अपन पता है अपना जो फर्स्ट एलिमेंट होंदा है वो x होंदा है, दूसरा y होंदा है। बेसिकली अपने कोले जो अपना सेट a है, a भी अपना x है सारा, ते सेट जो y है, y दे एलिमेंट्स ने वो भी अपना की है सेट a ही है, क्योंकि सेट x क्योंकि x ते y बिलोंग करते हैं a नु। ठीक है जी। सो अपने सारे x दे वैल्यूज भी ने ते y दी वैल्यूज भी ने। सब तो पहले आप x नु पुट करके देखते हैं 1। x नु 1 पुट किया, सो y जो वैल्यू आई है 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3। y कितना आ गया अपने को जी 3 आ गया। when x नु अपने 1 पुट किया, y कितना आ गया अपना 3 आ गया। ये अपना की है जी
रिलेशंस बन रहे हैं। सैकेंडली अपने x ਨੂੰ 2 पुट किया, x ਨੂੰ 2 पुट किया 3 to the 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। जो अपने x ਨੂੰ 2 पुट किया y कितना आ गया जी अपना 6 आ गया। अगे x ਨੂੰ अपने 3 पुट किया 3 3 ਦਾ 9, y की वैल्यू आ गई 9। वैन x ਨੂੰ 3 पुट किया y कितना आ गया अपना 9 आ गया। फिर अपने x ਨੂੰ 4 पुट किया 4 3 ਦਾ 12, y कितना आ गया जी 12। when x is put to 4 y becomes 12। ठीक है जी। फिर अपने को 5, x ਨੂੰ 5 पुट किया 5 3 ਦਾ 15, y की वैल्यू 15। बट अपने को जो वैल्यूज ने y दी सिर्फ 14 तक ही ने, 15 वैल्यू नहीं हैगी, यानी कि ये अपना रिलेशन नहीं बनेगा। हम इस तो बाद जो भी वैल्यूज अपने पुट करांगे x दियां, जो अपना y आएगा वो सारा 14 तो बड़ा ही आएगा, यानी कि इस तो बाद वाली वैल्यूज का रिलेशन किसी भी फंक्शन नाल नहीं बन रहा। सो अपने जो फंक्शन रिलेशन है वो सिर्फ 4 ही बन गए जो अपने हुण तक बन चुके हैं। क्लियर है जी। सो ये बन गया अपने रिलेशंस। इस तो बाद पूछा गया कि इसकी डोमेन रेंज पे कोडोमेन फाइंड करो। हुण डोमेन में तुहानूं दस्सिया सी डोमेन की हुंदी है, किसी भी रिलेशन की जो स्टार्टिंग होंगी है वो की होंगी अपनी डोमेन होंगी है। सो अपने को 4 रिलेशन निकल के आए ने, इन्हां की जो स्टार्टिंग है 1 2 3 4, ये की है जी ये डोमेन है। 1 2 3 ते 4 ये एलिमेंट्स की ने अपने डोमेन दे ने। नैक्सट है अपनी रेंज। रेंज होंगी है जिथों तक अपना रिश्ता गया है। रिश्ता कितना गया 3 तक 6 9 ते 12 तक, 3 6 9 ते 12 एक ही आ गई अपनी रेंज आ गई। कोडोमेन मैं तुहानूं दसी सी अपने सैट बी दे सारे एलिमेंट्स होंदे ने अपनी कोडोमेन। हुण सैट बी किहड़ा अपना, जो सैट ए है वही सैट बी है, क्योंकि कहा गया कि रिलेशन ए टू ए है, यानी कि सैट बी च अपने एलिमेंट्स ने जी 1 तो लैके 14 तक। सो इत्थे भी 1 तो लैके 14 तक सारे दे सारे एलिमेंट्स ने जिहड़े वो कोडोमेन दे विच आ जाणगे। सो ऐसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ईजी कॉन्सैप्ट है, आई होप तुहानूं समझ आया होगा। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के वल। सो अपना सैकेंड क्वेश्चन है, इस दे विच आपां नूं एक सैट दिता है नैचुरल नंबर्स का। अपने को नैचुरल नंबर का एक सैट है, एक कंडीशन दे रखी है, जो अपनी कंडीशन है जिस दे बेस ते आपां ने एक रिलेशन बनाना है वो की है y इक्वल्स टू x प्लस 5। तो जो अपनी x है वो अपनी 4 तो की होनी चाहिए है छोटी होनी चाहिए है। तो अपने x ते y के जो एलिमेंट्स ने बिलोंग करते हैं अपने दोनों नैचुरल नंबर्स ਨੂੰ। ठीक है जी। सो इस अपने एक सैट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इस दे विच अपने इस नु रोस्टर फॉर्म दे विच लिखना है, एक डोमेन फाइंड करनी है, एक रेंज फाइंड करनी है। सब तो पहले आप इस नु सॉल्व करांगे अपनी रोस्टर फॉर्म दे विच। सो जो x दे वैल्यूज ने वो की ने जी, एक 1 है 2 है 3 है, क्योंकि x की है नेचुरल नंबर है, बट 4 तो की होना चाहिए छोटा होना चाहिए। सो तीन ही वैल्यूज निकल के आएंगी जो 4 तो की ने छोटियां ने। सो आप यही तीन वैल्यूज पुट करांगे अपनी कंडीशन दे विच। फर्स्टली अपने x की वैल्यू रखी 1, सो x की वैल्यू रखी 1, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। जो अपने अपनी x की वैल्यू रखी जी 1, y कितना निकल के आया 6, यानी कि 1 का जो रिलेशन है कितना किहदे नाल बने 6 नाल बने। उस तो बाद जो अपने रखी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू जो 2 रखी 2 प्लस 5 अपना हैगा जी 7। जो आप x की वैल्यू 2 रखी y निकल के आया अपना 7। जो आप x की वैल्यू रखी 3, x की वैल्यू 3 रखी 3 प्लस 5 कितना होगा जी 8। जो x रखी 3 y कितना आया 8 आया। सो ये तीन रिलेशंस ने जिहड़े अपने निकल के आए ने। सो ये अपने की होगी कि रोस्टर फॉर्म दे विच अपने डिपिक्ट करता है इसनूं। इस तो बाद आपां फाइंड करनी सी कि इहदी डोमेन एंड इहदी रेंज, जो आपां तो क्वेश्चन दे विच पूछी गई है। सो डोमेन की है जिथों रिलेशन स्टार्ट होए ने, स्टार्ट किथों होए ने 1 तो होया 2 तो होया 3 तो होया। 1 2 3 इज द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ दिस रिलेशन। सो रेंज की होंदी है
जिथे तक रिश्ता गया है, रिश्ता गया 6 तक, इन्हां दा 7 तक गया, इन्हां दा 8 तक गया, 6 7 8। सो एक ही आ गई इन्हां दी रेंज। इट्स क्लियर। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन दे वल। सो अपना थर्ड क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਸੈੱਟ A ਐਂਡ ਸੈੱਟ B। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ A to B। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, the difference between x and y is odd, यानी कि जो x ਤੇ y ਦੇ एलिमेंट ने ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ odd ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, यानी कि टाक होना चाहिए। ठीक है जी। सो इन्हां दे जो पेयर्स बननेगे अपने वो की बननेगे रोस्टर फॉर्म दे विच। सब तो पहला पेयर देखो, ये अपने x दे एलिमेंट्स ने, ये अपने y दे एलिमेंट्स ने। ठीक है जी। x ते y दे विचकार जो दूरी है डिफरेंस वो odd होना चाहिए। सो पहला एलिमेंट लिया अपने 1, y दा लिया 4। हुण 1 ते 4 दा डिफरेंस कितना जी 3 है। 3 की एक ऑड नंबर है। सो ये अपना कंडीशन नूं लागू करदा है, 1 ते 4 दा एक रिश्ता बनेगा, एक रिलेशन इन्हां दा बनेगा। उस तो बाद आपां देखदे हां x नूं लैणे 1, y नूं लैणे 6। 1 ते 6 दे विचकार जो डिफरेंस है वो कितना 5 दा। सो 5 एक ऑड नंबर है। सो इन्हां दा भी एक रिलेशन बन सकदा है 1 ते 6 दा। सेम अगे 1 लैणे, इस तो बाद लैणे 9। 1 ते 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ डिफरेंस है वो 8 ਦਾ है। 8 एक ऑड नंबर नहीं हैगा, एक ईवन नंबर है। सो इन्हां दा रिलेशन नहीं बनेगा। सो अगे चलते हैं 2। 2 ਦਾ रिलेशन 4 ਦੇ ਨਾਲ, डिफरेंस 2 है, ਇਹ ਇੱਕ ਈवन नंबर है, रिलेशन नहीं बनेगा। 2 ਦਾ 6 ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰ नंबर 4 बचे वो भी नहीं बनेगा। 2 ਦਾ रिलेशन 9 ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ डिफरेंस है 7 ਦਾ, 7 इज ऑड नंबर। सो ये रिलेशन बन सकता है 2 ਤੇ 9 ਦਾ रिलेशन। ठीक है जी। उस तो बाद 3 ਤੇ 4 ਦਾ रिलेशन बन सकता है जी हाँ। दोनों की दूरी कितनी है 1 दी है। 1 भी एक ऑड नंबर है, 3 ਦਾ रिलेशन 4 ਨਾਲ बन सकता है। अगे 3 ਦਾ रिलेशन 6 ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰ डिफरेंस 3 ਦਾ आ रहा है, वो भी एक ऑड नंबर है। सो 3 ਤੇ 6 ਦਾ रिलेशन बन सकता है। 3 ਤੇ 9 ਦਾ रिलेशन, इन्हां विचकार जो डिफरेंस ऑफ 6 दा, 6 इज ईवन नंबर, सो रिलेशन नहीं बनेगा। उस बाद बचा 5। 5 दा रिलेशन 4 दे नाल, दोनों का डिफरेंस 1 है। सो रिलेशन बन सकता है 1 इज ऑड नंबर। उस तो बाद 5 दा रिलेशन 6 दे नाल, डिफरेंस इन्हां दा भी 1 दा आ रहा है। सो 1 इज आल्सो ऑड नंबर, यही रिलेशन भी बन सकता है। उस तो बाद 5 दा रिलेशन 9 दे नाल, डिफरेंस इन्हां दा 4 दा है। सो 4 इज ईवन नंबर, रिलेशन नहीं बनेगा। सो अपने यही कुछ एलिमेंट्स ने जिन्हां दा की बन रहे ने, रिलेशन बन रहे ने। सो अपन यही कहा गया सी कि इन्हां दे एक रोस्टर फॉर्म लिखो, एक रिलेशन लिखो इन्हां दे। सो अपने कुछ रिलेशन निकल के आए ने, यही अपना की है जी इसका आंसर है। इट्स क्लियर। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन दे विच ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपां नूं पहलां दे रखिया कि P ते Q दो सैट दे रखे ने जिन्हां विचकार कुछ एलिमेंट्स ने, ते ये भी दे रखा कि 5 ਦਾ रिलेशन 3 ਨਾਲ बन रहा है, 6 ਦਾ रिलेशन 4 ਨਾਲ बन रहा है, 7 ਦਾ रिलेशन 5 ਨਾਲ बन रहा है। ये भी अपन डायग्राम के थ्रू इन्होंने दस दिता है। तो जो इन्होंने कहा कि सैट बिल्डर फॉर्म कड्डो, रोस्टर फॉर्म कड्डो ते डोमेन ते रेंज कड्डो। सो अपन साफ दिख रहा है कि रोस्टर फॉर्म तो इन्होंने गिवन ही दे रखी है कि 5 ਦਾ रिलेशन 3 ਨਾਲ बन रहा है। ये अपने की एक रोस्टर फॉर्म का ही पार्ट है। 5 ਦਾ रिलेशन 3 ਨਾਲ बन रहा है, 6 ਦਾ रिलेशन 4 ਨਾਲ बन रहा है, 7 ਦਾ रिलेशन 5 ਨਾਲ बन रहा है। क्लियर है जी। रोस्टर फॉर्म अपनी हो चुकी है। तो डोमेन अपनी की होंगी है जो जिथों अपना रिश्ता स्टार्ट होया, स्टार्ट कितों होया 5 तो 6 तो ते 7 तो। 5 6 ते 7 अपनी की आ गई डोमेन आ गई। ते रेंज की आ गई जिथे तक रिश्ता गया 3 तक गया, 4 तक 5 तक। सो 3 4 ते 5 ये अपनी की आ गई रेंज आ गई। हुण बची सैट बिल्डर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म किद्दां बनाई दी है? सो अपन पता है कि सब तो पहले अपन लिखते हैं कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ x एंड y सच दैट x एलिमेंट्स किदे लिए ने सैट A लिए जो अपन P गिवन है, ते y की अपना सैट Q दे लिए। ठीक है जी। सो अपन उत्थों साफ दिख रहा है कि जो रिलेशन बन रहा है तिन्हां दे विचकार दो दा डिफरेंस है।
ਹੁਣ 5 ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ, 6 ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਆ ਰਿਹਾ। यानी कि जो अपना y है, जो अपना y है किस दे इक्वल है, जो अपना x दे विचों 2 की कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, अपना की आ रहा है y आ रहा है। x विचों अपन की माइनस कर रहे हैं जी 2 माइनस कर रहे हैं, x की ने a वाले एलिमेंट्स ने ते y की है जी a वाले एलिमेंट्स है। a वाले एलिमेंट्स अपने कदों आ रहे हैं जो अपन a दे विचों 2 की कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, यानी कि x दे विचों 2 माइनस कर रहे हैं। लगी गल समझ जी। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ p ਨੂੰ ਤੇ y ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ q ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਟ ਬਿਲਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ a, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ for all elements of a b such that a b ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ a ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਲ a ਵੀ a ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਲ b ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ b ਕੀ ਹੈ, b is exactly divisible by a, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। सो इस तरह का अपने एक रिलेशन बनाना है, एक रिश्ता बनाना है जो प्रॉपर डिवाइड हो गए। हुण ए दे एलिमेंट्स भी यही ने ते बी दे एलिमेंट्स भी यही ने। ठीक है जी, आप एक बार दोबारा लिख लेने हैं। ए दे एलिमेंट्स भी यही ने, इन्हों आपां भी लिख लेने सेम सेट दोबारा 1 2 3 4 ते 6 ताकि अपन क्वेश्चन करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये अपने की ने ए दे एलिमेंट्स ने, ए वाले की ने बी दे एलिमेंट्स। ठीक है जी। सो जो अपना रिश्ता बनाना है अपने प्रॉपर डिवाइड हो गए। सो बी ਨੂੰ अपने डिवाइड कराना है a ਨਾਲ। b ਕੀ ਹੈ ਜੀ, b ਦਾ एलिमेंट 1 ਲਿਆ, a ਦਾ एलिमेंट 1 ਲਿਆ। ਹੁਣ 1 by 1 डिवाइड ਕਰਾਵਾਂਗੇ 1 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 2 ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ 2 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਤੇ 2 ਦਾ। उस तो बाद 3 ਨੂੰ 1 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 3 ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਮ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 4 ਆਏਗਾ ਤੇ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 1 ਨਾਲ 6 ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ b ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ 2। 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ 1 by 2 ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 by 2 इक्वल्स टू 1। सो एक रिलेशन बन रहा है जो कि प्रॉपर डिवाइड भी हो रहे हैं। उस तो बाद 3 by 2 डिवाइड नहीं होएगा, डेसिमल्स जाएगा। 4 by 2 इक्वल्स टू 2। सो ये भी प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। सो 2 ते 4 का भी जो रिलेशन है वो बनेगा 2 ते 4 का रिलेशन। उस तो बाद जी 4 by सॉरी अपना कितने सी 2 by 2। ठीक है। उसके बाद 3 by 2 नहीं, 4 by 2 हो गया। 6 by 2 इक्वल्स टू 3। सो ये रिलेशन बनेगा 2 ते 6 का। क्लियर। इस तो बाद देखते हैं अपन 3 का 3 by 1 रिलेशन बनेगा जी, जो बन भी चुके ऑलरेडी। ठीक है। उस तो बाद 4 by 2 ये भी रिलेशन बन चुके हैं 4 by 2 का। उस तो बाद 4 by 3 ये रिलेशन नहीं बन सकता। 4 by 4 इक्वल्स टू 1। सो ये भी फिर रिलेशन बनेगा। उस तो बाद 4 by 6 ये रिलेशन नहीं बनेगा। उस तो बाद 6 by 1 हाँ जी 6 by 1 रिलेशन बन चुके हैं। 6 by 2 का रिलेशन भी अपना बन चुकेगा जो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। 6 by 3 का रिलेशन भी बनेगा जी, क्योंकि डिवाइड करके 2 आएगा 6 by 3। उस तो बाद 6 by 4 आपस डिवाइड नहीं हो सकते, डेसिमल्स जाएंगे। 6 by 6 ये भी एक रिलेशन इन्हां दा बनेगा। आई थिंक एक रिलेशन अपना मिसिंग है 3 by 3। हाँ जी 3 by 3 अपना रह गया सीगा, ये भी अपना एक जो रिलेशन है वो बनेगा। ठीक है जी। सो ये अपने कुछ रिलेशंस ने जो इस तो निकल के आए ने, जो प्रॉपर डिवाइड हो रहे ने एक दूसरे से।
उस तो बाद डोमेन की है जिथों रिलेशन शुरू होंगे, शुरू कितों हो रहा है 1 1 1 1 1 2 4 3 6, यानी कि एक तो 1 तो हो रहा है, एक 2 तो हो रहा है, 3 तो भी हो रहा है, 4 तो भी हो रहा है, ते 6 तो भी हो रहा है। ये सब तो अपने जो रिलेशन है शुरू हो रहे हैं, खत्म कितने हो रहे हैं रेंज में लिखांगे 1 ते खत्म हो रहा है, 2 ते खत्म हो रहा है, 3 ते खत्म हो रहा है, 4 ते भी खत्म हो रहा है, 6 ते भी खत्म हो रहा है, 2 4 6 आ चुके ने, 4 6 6 3 ये सारे अपने आ चुके ने। सो ये अपनी की आ गई यदि रेंज आ गई। सो ये क्वेश्चन भी बहुत सौखा थी। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ਵੱਲ। सो अपना 6th क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x ਹੈ, y ਕੀ ਹੈ x + 5 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, यानी कि यही अपनी एक कंडीशन है y की अपना x + 5, ठीक है जी। सो जो सच दैट x है, x बिलोंग कर दिया 0 1 2 3 4 5, ये कुछ वैल्यूज ने x दी जिन्होंने ये बिलोंग कर दिया है। सो अपनी कंडीशन की है जी y दी, y = x + 5 है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ठीक है जी। हम सब तो पहले आप x ਨੂੰ 0 पुट करांगे, 0 + 5 कितना जी 5, यानी कि जो x ਨੂੰ 0 पुट किया y की जो वैल्यू आई कितनी आई 5 आ गई, ठीक है जी। सेम इतने देख सकते हो x ਨੂੰ 0 लोगे 0 + 5 5 है जी, x की वैल्यू 0 है, क्लियर है जी। उस तो बाद x ਨੂੰ 1 लवांगे, 1 + 5 6, x ਨੂੰ 1 लिया तो अपने को y की वैल्यू 6 आई। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ अपने 2 लिया तो y की वैल्यू 2 + 5 7 आई। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 3 लिया 3 + 5 8 आई। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 4 लिया 4 + 5 9 आई। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 5 लिया 5 + 5 अपने को जो वैल्यू हो 10 आई। सो ये कुछ रिलेशन ने, कुछ रिश्ते हैं जो अपने निकल के आए ने, ठीक है जी। सो इन्हां दी अपने डोमेन देखनी है, डोमेन की है जिथों रिलेशन स्टार्ट होया 0 1 2 3 4 ते 5, 0 1 2 3 4 ते 5, ये की आ गई जिन्हां दी डोमेन आ गई। उस तो बाद की अपनी रेंज है, रेंज की है 5 6 7 8 9 ते 10, 5 6 7 8 9 9 10, ये की आ गई जिन्हां दी रेंज आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ਵੱਲ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना बहुत सिंपल है, अपने को एक रिलेशन है x एंड जो y है ਉਹਦੇ रखे x ਦੀ क्यूब ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10, x ਤੇ एक प्राइम नंबर है बट 10 ਤੋਂ ਕੀ है छोटा है। प्राइम नंबर्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, डिवाइड ऑन इटसेल्फ। ਹੁਣ 10 ਤੋਂ ਛੋਟੇ प्राइम नंबर्स ਕਿਹੜੇ ਨੇ, प्राइम नंबर शुरू ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी 2 ਤੋਂ, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उस तो बाद आता 11 बट अपने लेने ने 10 तो छोटे। सो अपने को सिर्फ 4 प्राइम नंबर्स ने जो अपने निकल के आ रहे हैं। सो इन्हों के बिहाफ से ही आप अगे क्वेश्चन करांगे। सो जो y अपनी कितनी है जी x की क्यूब है। सो अपन रोस्टर फॉर्म के आप रिलेशंस कटांगे। फर्स्ट रिलेशन x की वैल्यू अपने 2 पुट की, x ਨੂੰ 2 पुट किया, 2 का क्यूब आया जी अपने को 8। सो y की वैल्यू आ गई अपनी 8। उस तो बाद x ने अपने 3 लिया, 3 का क्यूब 27, ठीक है जी। उस तो बाद ली अपने x की वैल्यू ली 5। सो 5 का क्यूब कितना होता है जी 5 × 5 25, 25 × 5 125, क्लियर है जी। उस तो बाद लास्ट अपना 7, जो आप x की वैल्यू 7 ली तो 7 का क्यूब कितना निकल के आया 7 7 का 49 एंड 49 7 का 3 आया 8 28 एंड 20 343। सो ये अपने जो एक रिलेशन निकल के आए ने, 4 रिलेशन अपने बने ने, इन्होंने अपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सी, देन अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। इस तो अलावा इस क्वेश्चन में होर कुछ नहीं पूछा गया। सो बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा,
ਸੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ A ਤੇ ਸੈਟ B ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੋ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਅਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਬਸੈਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹੀ ਸਬਸੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, A ਕ੍ਰੋਸ B। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਪੇਅਰਸ ਬਣਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? ਸੈੱਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੈੱਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। 6 ਪੇਅਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਬਸੈਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹੀ ਸਬਸੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। n ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟਸ फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 दी पावर n। क्लियर? n कितनी है जी? अपनी 6 हैगी, सो 2 दी पावर 6 इक्वल्स टू 64। नंबर ऑफ सबसेट्स ही अपने की होंगे ने? नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे ने। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी अपने कितने आ गए जी? 2 the power 6 equals to 64. That is our answer. It's clear? So move to next question. So ये अपनी exercise ਦਾ last question है, question number 9, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ condition ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ for all elements of A and B such that AB belongs to Z. Z ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ set chapter ਦੇ ਵਿੱਚ Z ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ integers। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ a minus b is an integer। a minus b भी की एक इंटीजर है, यानी कि a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ b ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਅਗਰ a ਚੋਂ b ਮਾਈਨਸ, a ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, b ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਡੋमेन ऑफ आर भी की आ रही है? एक इंटीजर ही आएगी। सो वो जो रिलेशन जिथे तक जाएगा, जिथे तक खत्म होएगा, वो नंबर भी की होगा? एक इंटीजर ही होएगा। सो रेंज भी की होएगी अपनी जी? इंटीजर ही होएगी। सो इन्ना अपने फाइंड करना सीगा दी डोमेन ते रेंज। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा, बहुत ईजी एक्सरसाइज सी तुहाडी। सो इहदे नाल ही अपनी कंप्लीट होंदी है अपनी एक्सरसाइज 2.2। आई होप तुहानू सब ने एक्सरसाइज समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। जे इस एक्सरसाइज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.3 ਦੇ ਵਿੱਚ।